Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 101 Microeconomics Block 1 Unit 1. Check your progress 2. Question 1. Define indifference curve. What are measured in the axis of the figure to draw an indifference curve? So what is an indifference curve? An indifference curve shows different combination of two goods, say X and Y, which gives consumers same level of utility or satisfaction. That is, the consumer is indifferent between different combination of two goods X and Y. So here we have represented a graph. On X axis we have good X, on Y axis we have good Y. This is an IC drawn. A, B, C, D denotes different combination of good X and Y, but all points give same utility. So this is written, the X axis denote good X and the Y axis denote good Y. Along IC1 curve, all points A, B, C, D denote different commodity bundles, but all points provide consumer with same level of utility or satisfaction. That is, consumer is indifferent between points A, B, C and D. Now question number 2. If u of x1, x2 is given as 10, x1 की power 0.3, x2 की power 0.7, money income is given as 200, price of good 1 is given as 5 and price of good 2 is given as 2, set up Lagrangian function and derive the simplest form of du by dx1 divided by du by dx2, that is marginal utility of x1 divided by marginal utility of x2 is equals to price of 1 good upon price of 2 good, second good. So we'll form the Lagrangian function, that is utility function plus lambda times m minus p1 x1 minus p2 x2, which is budget constraint. तो L x1 x2 is equals to 10 x1 की पावर 0.3 x2 की पावर 0.7 plus lambda times m is given as 200, p1 is 5, तो minus 5 into x1, p2 is given as 2 minus 2 into x2. First order condition will differentiate Lagrangian function with respect to x1, that is 10. देखो ऊपर है ये 0.3 आगे आ जाएगा 0.3 x1 0.3 माइनस 1 x2 0.7 एज इट इज़ प्लस लैम्डा 200 का डिफरेंशियल करेगा 0 आ जाएगा माइनस 5 क्योंकि x1 का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 3 x1 की पावर माइनस 0.7 x2 की पावर 0.7 माइनस 5 लैम्डा, इसको इक्वल्स टू 0. तो ऐसे लिख सकते हैं 3 x1 माइनस x1 की पावर माइनस 0.7 x2 की पावर 0.7 इक्वल्स टू 5 लैम्डा. पुट कर लो इक्वेशन 1. सिमिलरली विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x2. सो 10 इंटू 0.7 x1 एज इट इज 0.3 x2 की हो जाएगी 0.7 माइनस 1 प्लस लैम्डा p ऑफ x का क्या है 2, तो माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 7 x1 की पावर 0.3 x2 की पावर माइनस 0.3 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन आ जाएगी 7 x1 की पावर 0.3 x2 की पावर माइनस 0.3 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा. सेकेंड पार्ट डिवाइड करो इक्वेशन 1 को बाई 2, तो dl विद रिस्पेक्ट टू dx1 डिवाइडेड बाई dl अपॉन dx2. डिफरेंशियल जो करेंगे तो क्या आएगा देखो 3 x1 की पावर माइनस 0.7 x2 की पावर 0.7 डिवाइडेड बाई 7 x1 की पावर 0.3 x2 की पावर माइनस 0.3 इक्वल्स टू 5 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा. लैम्डा लैम्डा कैंसिल है तो क्या बचेगा 3/7 x1 की पावर माइनस 0.7 x2 की पावर 0.7 डिवाइड बाई x1 की पावर 0.3 x2 की पावर 0 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 5/2. इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा देखो डिवीजन में तो पावर माइनस होंगी या इसको नीचे लाएंगे तो डिवीजन में पावर माइनस होंगी. तो कैसे लिख सकते हैं देखो 3/7 x2 0.7 माइनस ऑफ माइनस 0.3, क्योंकि इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस है ऑलरेडी, माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा. सिमिलरली 7 x1 0.3 था यहाँ देखो पॉजिटिव में, जब इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस ऑफ माइनस 0.7 इज इक्वल टू 5/2. तो क्या हो जाएगा तो बेस से में पावर ऐड जाएगी 3/7 एज इट इज x2 0.7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 0.3 कितना हो जाएगा x2 की पावर 1. सिमिलरली x1 0.3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 0.7 x1 इज इक्वल टू 5/2. So we'll get 3/7 x2 upon x1 is equals to 5/2. Third question, if u of x1 x2 is given as 10 x1 की पावर 0.5 x2 की पावर 0.5, m मनी इनकम 100 है, p1 2 है, p2 4 है, हमें कैलकुलेट करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो आपको पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है mu x upon mu y is equals to price of x upon price of y, where mu x upon mu y is nothing but slope of IC, which is also represented marginal rate of substitution of good x and y, and slope of budget line is px upon py. सो mu x1 निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 को तो 5 हो जाएगा. x1 की पावर माइनस 0.5 x2 की पावर 0.5. सिमिलरली mu x2 कैसे हो जाएगा 5 x1 की पावर 0.5 x2 की पावर माइनस 0.5 डिवाइड करेंगे mu x1 अपॉन mu x2, तो 5 कैंसिल हो जाएगा. x1 की पावर माइनस 0.5 इंटू x2 0.5 डिवाइडेड बाई x1 0.5 x2 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 2/4. इसको नीचे भेजेंगे तो बेस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा नीचे और इसको ऊपर भेजेंगे देखो ये पावर ऊपर ऐसे जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो जाएगा x2 बाई x1 इक्वल्स टू 1/2. तो दैट इज 2 x2 इज इक्वल्स टू x1, तो x1 इज इक्वल्स टू 2 x2.
देखो बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल्स टू P1 x1 प्लस P2 x2, तो m इज़ 100, प्राइस ऑफ x1 इज़ 2 इंटू x1 प्लस प्राइस ऑफ टू इज़ 4 इंटू x2। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो कि x1 इज इक्वल्स टू 2x2, सब्सटीट्यूट करेंगे 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x2 प्लस 4x2, कितना हो गया 100 इज इक्वल्स टू 4x2 प्लस 4x2, 8x2 इक्वल 100, x2 की वैल्यू क्या है 100/8 विच इज 25/2 विच इज 12.5। सिंस x1 इज ट्वाइस ऑफ x2 और x2 की वैल्यू 25/2 या 12.5 है, तो 2 इंटू 20.5 या 25/2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू 25 और x2 की वैल्यू 12.5। सो दैट वाज ऑल गाइज, थैंक यू guys, do like, share and subscribe my channel and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.